Assalamu alaikum. My name is Alina Afzal from BS Chemistry 4B, registration number CHEM 1811107. The topic of our presentation is lipids. These are my group members. Now I discuss definition and classification of lipids. So what is lipids? The word lipid is derived from Greek word lipos, which means fat. These are heterogeneous group of compounds. हेट्रोजीनियस का मतलब ये होता है कि लिपिड के अंदर एक तरह के कंपाउंड ही मिलेंगे। इसमें हमें डिफरेंट किस्म के कंपाउंड नजर आएंगे जिनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा। लिपिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, रिलेटिवली इनसोल्युबल इन वाटर होते हैं और सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन वगैरह। और दे आर एक्चुअली और पोटेंशियली रिलेटेड टू फैटी एसिड। पोटेंशियली रिलेटेड मतलब किसी फैटी एसिड में कोई चेंजिंग आई हुई है और वो फैटी एसिड किसी लिपिड में नजर आए। So this is the definition of lipids. Now classification of lipids. There are four major classification of lipids: simple lipids, complex or compound lipids, derived lipids and miscellaneous lipids. First of all, simple lipids. These are the esters of fatty acid with glycerol, mainly of two types of simple lipids: fats and oils and waxes. Fats and oils. These are the ester of fatty acid with and glycerol. Difference between fat and oil is physical. The only difference between fat and oil is fat is solid at room temperature and the oil is liquid. Waxes. These are the ester of fatty acid and alcohol rather than glycerol. Alcohol in the waxes is higher than the glycerol. It is mainly the cetyl alcohol. There are number of commercial uses of waxes in cosmetic industry. It is very useful. Next one is complex or compound lipids. These are the ester of fatty acid plus alcohol plus other groups. These groups may be phosphoric acid in phospholipids, carbohydrate in glycolipid, protein in the lipoprotein. Based on the group present, there are further classified into phospholipids, glycolipids and lipoprotein. So what is phospholipid? Phospholipid contain fatty acid, alcohol plus nitrogenous base in some cases and phosphoric acid. These are known as phospholipids. Phospholipid further divided into two types: glycerophospholipid and sphingophospholipid. ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड कंटेन ग्लिसरॉल एज अल्कोहल। इसके एग्जांपल में आ जाएगा लिसिथीन एंड सिफालीन। नेक्स्ट इज स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड कंटेन स्फिंगोसिन एज अल्कोहल। इसके एग्जांपल में आ जाएगा स्फिंगोमाइसिन। सेकंड वन इज ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स इन एडिशन टू फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, ग्लाइकोलिपिड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। इसके एग्जांपल में आ जाएगा सेरिब्रोसाइड्स एंड गैंग्लियोसाइड्स। थर्ड वन इज लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स कंटेन लिपिड एंड प्रोटीन। इसके एग्जांपल में आएगा क्रायोमाइक्रोन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अदर्स भी इसके होते हैं, अदर टाइप्स होते हैं सल्फोलिपिड्स एंड अमाइनोलिपिड्स। थर्ड वन इज डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स डिराइव्ड होते हैं सिंपल और कम्प्लेक्स लिपिड से। These include fatty acid, glycerol, monoacyl glycerol, diacyl glycerol, sterols and cholesterol. Now last is miscellaneous lipids. These lipids possesses characteristics of lipids. These includes carotenoids, squalene, terpenes. So this is the definition and classification of lipids. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Aliza Anwar. Registration number chemistry 1811113. My topic of presentation is chemistry and biological importance of fatty acids. Definition of fatty acid. A carboxylic acid consisting of hydrocarbon chain and a terminal carboxylic group. फैटी एसिड्स क्या हैं? फैटी एसिड्स लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है और एंड टर्मिनल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फैटी एसिड्स को एसिडिक प्रॉपर्टी देता है। मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड्स हैव इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड्स डिपेंड अपॉन टू मेन फैक्टर्स। फैटी एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज दो मेन फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। फर्स्ट वन इज चेन लेंथ ऑफ फैटी एसिड्स एंड सेकेंड इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन। चेन लेंथ पर किस तरह इसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं? अगर शॉर्टर चेन ऑफ फैटी एसिड्स होंगे उनके मेल्टिंग पॉइंट लोअर होंगे, अगर लॉन्गर चेन ऑफ फैटी एसिड्स होंगे उनके मेल्टिंग पॉइंट हायर होते हैं। सैचुरेटेड इसी तरह सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट हायर होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट लोअर होते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। फर्स्ट,
सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में नो डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द कार्बन चेन, कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, सिंगल बॉन्ड होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर फाउंड इन एनिमल्स, एनिमल्स में पाए जाते हैं, एनिमल्स से हम ऑब्टेन करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, इसीलिए रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसकी एग्जांपल है जैसे एनिमल फैट्स हैं या एडिपोज टिश्यू हैं, वो लिपिड स्टोर करते हैं और वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और एग्जांपल हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की एग्जांपल हैं ये। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड इन द कार्बन चेन। वन डबल बॉन्ड हो सकता है, टू डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर फाउंड इन प्लांट्स, प्लांट्स में पाए जाते हैं, प्लांट से हम इनको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। जैसे इनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं एज़ कम्पेयर टू सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और एट रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे पाम ऑयल या कोकोनट ऑयल, ये जो भी ऑयल हम ऑब्टेन करते हैं प्लांट से, वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की एग्जांपल हैं। इसके अलावा इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। इसेंशियल फैटी एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, और वो हम अपने फूड से लेते हैं या सप्लीमेंट से लेते हैं। और नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी उनको सिंथेसाइज करती है। Next, biological importance of fatty acids. First one is fatty acids are used as a form of energy storage. जैसे एडिपोज टिश्यू हैं, इसमें लिपिड स्टोर होते हैं और वो ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में स्टोर होते हैं। जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो इनकी ब्रेकडाउन होती है और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जो हमारी बॉडी यूज़ करती है। नेक्स्ट, when stored, fatty acids are important sources of thermal and electrical insulation as well as protection against mechanical compression. इसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है जैसे वैक्सीज हैं, वो इनकी एग्जांपल हैं। One of the most important function of fatty acids is in the formation of cell membrane. सेल मेम्ब्रेन 50% रिक्वायर करती है फैटी एसिड्स, और सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है, इसलिए यहाँ भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फैटी एसिड्स आर इन्वॉल्व इन अ वाइड रेंज ऑफ बायोलॉजिकल सिग्नलिंग पाथवे फॉर हार्मोन्स प्रोडक्शन। जैसे जब लिपिड्स की ऑक्सीडेशन होती है, उनका जो प्रोडक्ट होते हैं वो एज अ प्रिकर्सर ऑफ सिग्नलिंग प्रिकर्सर यूज होते हैं ऑफ सिग्नलिंग पाथवे मेडिएटर, वहाँ एज अ प्रिकर्सर यूज़ किया जाता है। और नर्व इम्पल्स हैं, उनकी ट्रांसमिशन सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है, इसलिए यहाँ भी फैटी एसिड्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Fatty acids have role in the composition of hormones and lipids. फैटी एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड्स हैं, और हार्मोन्स जैसे सेक्स हार्मोन्स हैं, इसमें मेल हार्मोन एस्ट्रोजन और फीमेल सेक्स हार्मोन मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन, ये लिपिड नेचर के होते हैं। लंग सर्फेक्टेंट इज कंपोज ऑफ 16 कार्बन पाल्मिटिक एसिड। लंग सर्फेक्टेंट प्रिवेंट करता है ब्रीदिंग डिसऑर्डर या एस्थमा से प्रिवेंट करता है, ये भी 16 कार्बन पाल्मिटिक एसिड्स से मिलकर बना होता है। और भी फैटी एसिड्स हैं जो कि किल करते हैं बैक्टीरिया को इन द गट में, बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ फैटी एसिड्स था। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मेरा सरीन, रजिस्ट्रेशन नंबर कैम 188-108। मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है इसाइल ग्लाइसरोल, जिसे ग्लाइसराइड्स भी कहते हैं। कंपोज होता है ग्लाइसरोल से और 3 फैटी एसिड से। अब इसाइल ग्लाइसरोल को हम लोग ट्राइग्लाइसराइड्स भी कहते हैं। केमिकली इसाइल ग्लाइसरोल जो है उसे हम लोग इससे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एस्टर और फैटी एसिड और अल्कोहल होते हैं। अब एस्टर हमारे पास क्या होता है? एस्टर ऐसा कंपाउंड होता है जो कि केमिकल रिएक्शन जब अल्कोहल का एसिड के साथ होता है तो हमारे पास रिजल्ट में एस्टर फॉर्म होता है और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। जिस तरह कि नीचे इक्वेशन में बताया है कि अल्कोहल एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और एस्टर फॉर्म होता है और वाटर मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है,
अब ट्राइग्लाइसराइड जो है वो कंपोज होता है 3 फैटी एसिड से और ग्लाइसरॉल से। इसी तरह इक्वेशन में हमें दिखाया गया है कि 3 फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल मिलके ट्राइग्लाइसराइड ग्लाइसरॉल बनाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल 3 हमारे पास बनते हैं। अब प्रीवियस डायग्राम में क्या हमारे पास दिखाया था कि जो डॉटेड स्क्वायर थे उसमें OH जो है वो रिलीज होता था अल्कोहल से और हाइड्रोजन जो है वो एसिड से, दोनों कंबाइन करके हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बनाते थे। फैटी एसिड जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ट्राइग्लाइसरॉल से। अब ग्लाइसरॉल जो है फैटी एसिड से मिलके बनते हैं तो ज़ाहिरी बात है ट्राइग्लाइसरॉल्स भी फैटी एसिड से मिलके बनेंगे। अब प्लांट जो है वो ज़्यादातर जो है स्टोर करते हैं लिपिड्स को एज अ ट्राइग्लाइसरॉल्स से, ठीक है। इसमें एग्जांपल हमारे पास आती है ये दालें वगैरह, ठीक है, और ये प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हाईएस्ट ट्राइग्लाइसरॉल लेवल जो है वो किस में अकर होता है, एलिरोन में और स्क्यूटुलर टिश्यूज़ में। अब है मोनोएसाइल ग्लाइसरोल्स और डाईएसाइल ग्लाइसरोल्स, वो हमारे पास स्मॉल क्वांटिटीज़ में अकर होते हैं। या तो ग्लाइसरोल्स की स्टार्टिंग में बनाने में हेल्प करते हैं, थोड़ा सा यूज़ होते हैं, या इनकी मेटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन में यूज़ होते हैं। अब है बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। प्रोवाइड क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सेल्स को उनके फंक्शंस में हेल्प करने। मेन बायोलॉजिकल फंक्शन जो है ट्राइग्लिसराइड का वो ऐसा यूज़ होता है फ्यूल में। एनर्जी सोर्स यूज़ होता है, जिस तरह के लिपिड कंटेन करते हैं ट्वाइस एनर्जी कंटेंट एज कार्बोहाइड्रेट। अब वाटर प्रूफिंग आ जाता है। वाटर प्रूफिंग में होता है कि लिपिड जो है वो इनसॉल्युबल होता है। कई प्लांट्स की जो है वो वेक्सिक्यूटिकल लेयर होता है जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं लीव्स से। इंसुलेशन में हेल्प करते हैं, जिसमें मतलब फैट जो है वो स्लो कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और गुड इंसुलेटर हीट रिटेन में होता है, ठीक है। प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, जिस तरह फैट जो है वो ज़्यादातर स्टोर होते हैं अराउंड इंटरनल ऑर्गन्स के, जो कि इनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती होती है। अब ट्राइग्लिसराइड्स मेजरमेंट आर यूज इन द डायग्नोसिस। ट्राइग्लिसराइड्स की जो मेजरमेंट होती हैं वो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़ में इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें हमारे पास लिपिड मेटाबॉलिज्म आ जाता है और वेरियस एंडोक्राइन डिसऑर्डर आ जाते हैं। ये है मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक पूरा। थैंक यू। Assalamualaikum. My name is Zara Khan and my registration number is CAM18Tetra136. So the next one is phospholipids. What is phospholipids? Phospholipids are the class of lipid that are the major component of all cell membrane. Means ये lipids की एक class है और all cell membrane का major component जो है वो phospholipid है. They can form lipid bilayers because of their amphiphilic characteristic. What is amphiphilic? Amphiphilic means water and fat loving. और इसके वाटर और फैट लविंग कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ही फॉस्फोलिपिड जो है वो लिपिड बाइलेयर मीन 2 लेयर्स बनाता है. द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जनरली कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल एंड अ हाइड्रोफिलिक हेड consisting of a phosphate group. Like this is hydrophilic head consisting of a phosphate. Like this is phosphate group के साथ ये attach है और this is 2 hydrophobic fatty acid tails. What is hydrophobic and what is hydrophilic? आप ये भी जानना चाहते होंगे. तो hydrophobic means water repellent and hydrophilic means वाटर अट्रैक्ट मीन ये अट्रैक्ट करके वाटर को अट्रैक्ट करके ये बॉन्डिंग बनाता है. सो द नेक्स्ट इज बायोसिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड. फॉस्फोलिपिड मतलब कैसे बनता है, किन किन चीज़ों के ऐड होने से फॉस्फोलिपिड बनता है. फॉस्फोलिपिड कंसिस्ट ऑफ अ ग्लाइसरॉल. दिस इज ग्लाइसरॉल. 2 फैटी एसिड चेन. दिस इज 1 and this is 2. This is 2 fatty acid chains
and a phosphate group that is modified by an alcohol. This is phosphate group. Like पीछे भी मैंने बताया था कि उसकी 2 हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल्स होती हैं दिस एंड अ हाइड्रोफिलिक हेड, एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है. दिस इज 2 फैटी एसिड चेन वही, एंड दिस इज ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल है एंड दिस इज फॉस्फेट ग्रुप. लॉजिकली इम्पोर्टेंस क्या है फॉस्फोलिपिड्स की? नंबर 1, phospholipid are the major component of plasma membrane, the outermost layer of animal cell. मीन कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेजर कंपोनेंट है वो फोस्फोलिपिड होता है. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाती है, मतलब उसका एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. सेकेंड, लाइक फैट्स, they are composed of fatty acid chain attached to a glycerol backbone. मीन जो फैट दे आर कंपोज ऑफ फैटी एसिड चेन्स. दिस इज फैटी एसिड चेन्स, दिस इज 2, और ये ग्लाइसरॉल के साथ अटैच है. इसी वजह से वो कह रहे हैं फैट की वजह से जो है ये ग्लाइसरॉल की बैकबोन के साथ अटैच होती हैं. फॉस्फोलिपिड आर द मेजर लिपिड्स. मीन मेजर लिपिड जो है वो फॉस्फोलिपिड ही है. किसमें? इन फिश स्किन में. फिश की जो स्किन होती है उस पर जो मेजर पार्ट जो होता है ना वो फॉस्फोलिपिड होता है लिपिड्स का. एंड कंट्रीब्यूट टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन एंड टिश्यू. और मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है फिशेस की स्किन में और उनके टिश्यूज़ में, वो फॉस्फोलिपिड का मतलब लिपिड्स का जो मेजर पार्ट फॉस्फोलिपिड है उसी की वजह से पाई जाती है. सो फॉस्फोलिपिड आर द पोलर लिपिड्स नेचुरली फाउंड इन एनिमल्स. मतलब फॉस्फोलिपिड एनिमल्स में जो मोस्ट ऑफ द लिपिड का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट मतलब पोलर पार्ट होता है ना वो फॉस्फोलिपिड ही होता है. प्लांट्स में भी सेम एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल वॉल में भी सेम. फॉर्म बायलेयर, मैंने जैसे पीछे बताया था कि ये लिपिड बायलेयर बनाती है. किसकी वजह से? एम्फीफिलिक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से. विच provide barrier around the cell and only letting certain molecule like carbon monoxide and oxygen necessary in cellular respiration. Because of its two layers ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को और सिर्फ ऑक्सीजन को अपने अंदर एंटर होने देती है. एक बैरियर बनाया हुआ है, सिर्फ यही चीज़ें ही उसके अंदर एंटर होती हैं. ये भी बिकॉज उसे नेसेसरी होती हैं फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन. फॉस्फोलिपिड इन स्टमक हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन द फैट. जो स्टमक में फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है वो किस लिए हेल्प करते हैं? हमारी फैट को ब्रेक डाउन करने में. थैंक यू. Assalamualaikum, my name is Maruf Nazir. Topic of my presentation is prostaglandins. Prostaglandins are something that is related to the prostaglandins. So the secretions coming from the prostaglandins are the prostaglandins. Those secretions are actually the hormones which were discovered by the Swedish physiologist Ulf von Euler in 1935, and he named them prostaglandins because of their site of secretion. They are actually the group of unsaturated oxygenated fatty acids synthesized from the arachidonic acid via cyclooxygenase mechanism. Although they were secreted from the prostate glands, but they are found in almost in every kind of tissue like bone tissues, nerve cells, muscle cells, and even in the reproductive tissues like testes. And they are derived from the fatty acids which are the 20 carbon fatty acids and are known as arachidonic acid. Discuss the biosynthesis of prostaglandins. Prostaglandins are made up of the unsaturated fatty acids that contain cyclopentane ring and derived from the 20 carbon strain and polyunsaturated fatty acid precursor arachidonic acid. Biosynthesis of prostaglandin is actually done by the enzyme which is a prostaglandin S synthase. Prostaglandin S synthase has two kind of activities. First one is cyclooxygenase activity and second one is peroxidase activity. And so the production of prostaglandin is basically consists of two steps. So at first step cyclooxygenase activity incorporate two oxygen molecule in arachidonic acid backbone to produce prostaglandin G2. So then prostaglandin G2 with the help of a peroxidase activity reduced to the corresponding alcohol which is a PGH2.
When we discuss the biosynthesis of prostaglandin at cellular level, then question came into our mind that from where prostaglandin produced and where it's stored. So prostaglandins are very unstable compounds. Their half life is about 30 seconds. So they perform their work and degrade it. At cellular level, when the membrane phospholipid is cleaved by the specific enzyme which is phospholipase A2, then arachidonic acid produced. When arachidonic acid produced, then with the help of prostaglandin H synthase, PGG2 and PGS2 produce, which is I previously discussed. Then when PGS2 produce, then it reacts with other enzymes to produce many other prostaglandins, like when PGH2 react with prostaglandin I2, it produces PGI2. When it react with the thromboxane synthase, then it produces thromboxanes. And when it react with the PGD synthase, PGE synthase and PGF synthase, then it produces prostaglandin D2, E2, F2 respectively. Regulation of prostaglandin flowing hormones increase the activity of phospholipase A2 to produce more prostaglandins, like epinephrine, thrombin, vasopressin, bradykinin, angiotensin II. These hormones trigger the activity of phospholipase to produce more prostaglandins, while steroids inhibits the activity of phospholipase A2 to prevent the production of prostaglandin. While in the case of prostaglandin synthase enzyme, catecholamines increase its activity, while aspirin inhibits its activity. Now we discuss the biological importance of prostaglandin. Prostaglandins have been found in almost every tissue in human and other animals. Activation of inflammatory response, production of pain and fever when tissues are damaged, white blood cells flood to the site to try to minimize tissue destruction. And blood clots from when a blood vessel is damaged. A type of prostaglandin called thromboxane stimulate constriction and clotting of platelets, while PGI2 prevents platelet aggregation. Certain prostaglandins are involved with the induction of labor and other reproductive process, like PGE2 cause uterine contraction and has been used to induce labor. Prostaglandins are involved in several other organs such as gastrointestinal tract, increase blood flow in the kidney, and leukotrienes promote constriction of bronchi associated with asthma. Plants synthesize molecules similar in structure to prostaglandin, including desmonic acid, which regulates the processes such as plant reproduction, fruit ripening, and flowering. So this is my topic. I am Aman Rahman and my registration number is 110. So today my topic of presentation is sphingolipids and their biological importance. So what is sphingolipids? Sphingolipids एक्चुअली में डेरिवेटिव्स होते हैं स्पिंगोसाइन के. तो स्पिंगोलिपिड्स को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्पिंगोसाइन क्या है. स्पिंगोसाइन एक बेसिक कंपाउंड है जो बहुत सारे सब्सटेंसेस का कॉन्स्टिट्यूएंट है. और स्पिंगोसाइन जो है ये मेटाबॉलिज्म ऑफ नर्व सेल में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और इसके अलावा स्पिंगोसाइन बिल्डिंग ब्लॉक भी है स्पिंगोलिपिड्स का. और स्पिंगोसाइन 18 कार्बन अमाइनो अल्कोहल और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन पर कंसिस्ट होता है. और ये जो है स्पिंगोलिपिड्स का प्राइमरी पार्ट बनाते हैं. और स्पिंगोलिपिड जो है ये ओकर होता है चीफली इन आउटसाइड मेम्ब्रेन्स ऑफ द ब्रेन और नर्वस टिश्यू में. जो फर्स्ट टाइम 1870s में स्पिंगोलिपिड्स को ब्रेन एक्सट्रैक्ट में डिस्कवर किया गया था. और इसकी एनिग्मेटिक यानी डिफ़िकल्ट नेचर की वजह से इसको ये नाम दिया गया. स्पिंगोलिपिड्स कोलेस्ट्रोफॉस्फोलिपिड्स के सिमिलर होता है. ये स्पिंगोसाइन, फैटी एसिड, फॉस्फेट और अमाइनो एसिड कंटेन करता है. अब इसके बाद आती हैं टाइप्स ऑफ स्पिंगोलिपिड्स. स्पिंगोलिपिड्स की दो टाइप्स हैं, स्पिंगोमाइलिन और ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड्स. स्पिंगोमाइलिन जो है ये फॉस्फेट और ग्लाइन ग्रुप कंटेन करता है और ये स्ट्रक्चरल लिपिड है नर्व सेल मेम्ब्रेन की. और उसके है फिर माइलिन शीट फीचर्स. और ये माइलिन शीट फिगर का क्या मतलब ये कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके एक्सोन के ऊपर माइलिनेटेड शीट होती है जो स्पिंगोलिपिड की बनी होती है. इसका काम ये होता है कि नर्व इम्पल्स से जो मैसेज पास हो रहा होता है उसको प्रोटेक्ट करे. और जो माइलिन शीट है वो एक्चुअली में स्पिंगोलिपिड ही होती है. तो स्पिंगोलिपिड की लेयर ये होती है जो कि एक्सोन को कवर करती है. और एक्सोन जो है वो न्यूरॉन का पार्ट है. और इसके बाद इसकी आती है दूसरी टाइप्स, ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड्स. ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड्स इस सेरोपेरोसाइट्स, सल्फाटाइड्स और गैंग्लियोसाइट्स
गैंग्लियोसाइड्स पर मुश्तमिल होती है, मतलब ये सब इसमें इंक्लूड है। और सीरोपेप्टाइड्स का जो है सिंगल मोनोसेक्राइड हेड ग्रुप होता है, और जो सिंगल मोनोसेक्राइड हेड ग्रुप होता है या तो ग्लाइकोसिरोपेप्टाइड होता है या फिर ग्लैक्टोसिरोपेप्टाइड का बना होता है। और इसके अलावा जो सीरोपेप्टाइड और ग्लैंडुलोसाइड्स क्या होते हैं? सीरोपेप्टाइड जो है ये ग्रुप के कम्प्लेक्स लिपिड्स होते हैं, ये ग्रुप ऑफ कम्प्लेक्स लिपिड्स होते हैं जो कि नर्व फाइबर्स के शीट में प्रेजेंट होते हैं। और गैंग्लियोसाइड जो है ये ग्रुप है ऑफ कम्प्लेक्स, ये भी ग्रुप ऑफ कम्प्लेक्स लिपिड्स होते हैं जो कि ह्यूमन ब्रेन के ग्रे मैटर में प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा ये जो डायग्राम है इससे हमें पता चल रहा है कि ये किस तरह केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनते हैं। उसके बाद है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिंगोलिपिड्स। ह्यूमंस में एटलीस्ट 60 डिफरेंट स्पिंगोलिपिड्स होते हैं जो कि मोस्टली न्यूरोनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोमिनेंट होते हैं। और ब्रेन के जो है नर्वस सिस्टम में स्पिंगोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं, और ये मेजर पोर्शन ऑफ ब्रेन को कंपोज करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ माइलिन। ये टिश्यू डेवलपमेंट, सेल रिकॉग्निशन और एडहेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और रिसेप्टर्स के तौर पर भी रिएक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि स्पिंगोलिपिड की लेयर न्यूरॉन को कवर करती है और उसको प्रोटेक्ट करती है। तो कोई टॉक्सिन वगैरह अगर न्यूरॉन के साथ अटैच हो रहे हैं तो ये उनको रिकॉग्नाइज कर लेती है और टॉक्सिक रिसेप्टर के तौर पर वर्क करना स्टार्ट कर देती है। और इसके अलावा इसका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये सर्व करती है एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फिर न्यूरोनल डिफरेंशिएशन, सिनेप्टोजेनेसिस और उसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस प्ले करती है। और स्पिंगोमाइलिन जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डीएनए सिंथेसिस में, क्रोमेटिन असेंबली में, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में और आरएनए स्टेबिलिटी में। और जो बहुत वेल नोन फंक्शन है स्पिंगोलिपिड का वो ये है कि ये फंक्शन करती है सेल सरफेस एंटीजन, और ये डिफाइन करती है वेरियस ब्लड की टाइप्स को। हमारे पास ये फिगर है, इससे हमें पता चल रहा है कि ब्लड ग्रुप जो है वो डिटरमाइन होता है शुगर हेड ग्रुप से। यहाँ पे देखें डिफरेंट शुगर हेड ग्रुप्स लगे हुए हैं और इनकी थोड़ी सी प्लेस चेंज होने से, किसी एक की थोड़ी सी प्लेस चेंज होने से ये पूरा का पूरा एंटीजन डिफरेंट हो गया है। और यहाँ पे जो है ये FUC जो ये है ये फ्रक्टोज शुगर को रिप्रेजेंट कर रही है। फ्रक्टोज शुगर को ये रिप्रेजेंट कर रही है। और उसके अलावा स्पिंगोलिपिड्स जो है हाईली बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो रेगुलेशन ऑफ सेल ग्रोथ और डाइवर्स सेल फंक्शन और एपोप्टोसिस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। सो दिस इज माय होल प्रेजेंटेशन, थैंक यू। My name is Mariam Murtaza and my registration number is 101. My presentation topic is chemistry and biological importance of sterols. First of all, sterols are also known as steroid alcohol. जो sterols हैं उनको steroid alcohol भी कहते हैं क्योंकि ये स्टीरॉयड के सब ग्रुप्स हैं एंड इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की ये इम्पोर्टेंट क्लास है। दे आर टाइप ऑफ लिपिड। स्टीरोल्स हैं ये लिपिड की एक टाइप है। अक्रेंस नेक्स्ट है कि अक्रेंस ये मतलब कहाँ पाए जाते हैं? दे नेचुरली अकर इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। प्लांट्स में, एनिमल्स में और फंजाई में। दे आल्सो प्रोड्यूस बाय सम बैक्टीरिया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, उनसे भी ये प्रोड्यूस होते हैं स्टीरोल्स। नेक्स्ट है स्टीरोल का स्ट्रक्चर। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है रिंग पे एट द पोजीशन 3 पोजीशन नंबर 3 पे जो है ना एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये पोलर है। नेक्स्ट है द मोस्ट फेमिलियर एनिमल स्टीरोल इज कोलेस्ट्रॉल। जैसे कि बताया गया, इनके अक्रेंस में बताया गया कि ये एनिमल्स में पाए जाते हैं, प्लांट्स में, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई में। तो जो एनिमल्स में स्टीरोल पाया जाता है हम उसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। द स्टीरोल ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड फाइटोस्टीरोल। जो प्लांट में स्टीरोल पाया जाता है हम उसको फाइटोस्टीरोल कहते हैं। फाइटो जो है इसका फाइटो जो है फोटोसेंसिस में भी मतलब यूज़ होता है, फाइटोमेन लाइट, लेकिन ये प्लांट से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट है रोल इन बायोकेमिस्ट्री। इसकी सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या है, रोल क्या है? स्टीरोल्स एंड रिलेटेड कंपाउंड्स प्ले इसेंशियल रोल इन द फिजियोलॉजी ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की फिजियोलॉजी मीन्स के यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है और उस न्यूक्लियस के अराउंड एक मेम्ब्रेन भी होती है और उस मेम्ब्रेन में ये स्टीरोल पाया जाता है। इसलिए ये जो है लिखा गया है कि प्ले इसेंशियल रोल इन द फिजियोलॉजी ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स।
नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल प्ले रोल और फॉर्म पार्ट्स ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन इन एनिमल्स। एनिमल्स की जो सेलुलर मेम्ब्रेन होती है उसमें भी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। स्टीरोल्स आर कॉमन कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्किन ऑयल। ह्यूमन स्किन ऑयल में भी ये पाया जाता है। स्टीरोल्स आर सब ग्रुप ऑफ स्टीरॉयड, जैसे कि फर्स्ट पे ही एक्सप्लेन किया गया कि जो है ये सब स्टीरॉयड्स के सब ग्रुप है विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है इसके स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन किया गया कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है एट द 3 पोजीशन ऑफ ए रिंग। रिंग ए पे 3rd पोजीशन पे जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। दीज आर एम्फीपैथिक लिपिड्स। जो ये जो स्टीरोल्स हैं ये एम्फीपैथिक लिपिड्स हैं। एम्फीपैथिक लिपिड्स वो वाले लिपिड्स होते हैं जो हाइड्रोफिलिक भी होती है और हाइड्रोफोबिक भी होती है। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग और ये जो हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर फेयरिंग। हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग है तो ये पोलर एंड है, और हाइड्रोफोबिक वाटर फेयरिंग है जो वाटर लविंग नहीं है तो ये जो है नॉन पोलर एंड है, इसलिए ये एम्फीपैथिक लिपिड्स भी हैं। इन ये सेंथिसाइज फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम से। कोएंजाइम है एसिटाइल, जिसे हम एसिटाइल कोएंजाइम कहते हैं, ये उनसे प्रोड्यूस होते हैं तो उनसे सेंथिसाइज किए जाते हैं। नेक्स्ट है द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द ए रिंग। जो ए रिंग पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो पोलर है। ये मतलब एम्फीपैथिक लिपिड्स हैं, हाइड्रोफिलिक भी हाइड्रोफोबिक भी हैं, लेकिन जो ए रिंग पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है ना वो पोलर है, मीन्स वाटर लविंग है। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Zuha Shehzad and my registration number is 181111081. Today my topic of presentation is significance of lipid in biological membrane. जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल से बनी होती है। लिपिड बायलेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इसमें एम्बेडेड होते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें प्रेजेंट होती है। जो लिपिड होती है वो थिन पोलर मेम्ब्रेन होती है जो कि किसी भी 2 लिपिड मॉलिक्यूल्स की लेयर से बनी होती है। ये थिन पोलर मेम्ब्रेन फ्लैट शीट की फॉर्म में होती है जो कि पूरे सेल के अराउंड कंटिन्यूसली बैरियर बना देती है। सेल मेम्ब्रेन मोस्ट ऑर्गेनिज्म की लिपिड बायलेयर से बनी होती है। जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को सराउंड करते हैं, इस तरह ये लिपिड बायलेयर से बनी हुई सेल मेम्ब्रेन पूरे सेल को सराउंड करती है। मोस्ट अबंडेंट जो लिपिड होते हैं वो फॉस्फोलिपिड होते हैं। जैसे कि दूसरे लिपिड में है ग्लाइकोलिपिड, स्टीरोल, बट मोस्टली फॉस्फोलिपिड ही यूज्ड होता है। लिपिड बायलेयर एम्फीपैथिक होता है, मीन्स उसके पास हाइड्रोफिलिक वाटर लवर हेड होता है और हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलेंट और वाटर हेटर टेल होती है। हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट हेड किसी भी सेल मेम्ब्रेन की केमिस्ट्री को अल्टर कर देता है और ये मॉलिक्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन में सिग्नल और एंकरिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है। हाइड्रोफोबिक टेल जो कि 2 फैटी एसिड चेन से बनी होती है वो डिटरमिन करती है कि बायलेयर किस फेस में है। सॉलिड जेल फेस होती है लो टेम्परेचर पे और लिक्विड फेस होती है हाई टेम्परेचर पे। किसी भी लिपिड बायलेयर की जो पैकिंग होती है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इफ़ेक्ट करती है। लिपिड बायलेयर के दरमियान नॉन कोवलेंट असेंबलेज होती है जो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसके मदद से वो बेंड और स्ट्रेच होने में रेसिस्टेंस होती है। लैब में इसी प्रॉपर्टीज़ के मद्देनज़र आर्टिफिशियल मॉडल बायलेयर बनाया गया है जिसकी मदद से वेसिकल्स बनाई गई हैं जो कि क्लिनिकली यूज़ होते हैं आर्टिफिशियली ड्रग को इंट्रोड्यूस करने में। सिलेक्टिव परमिएबल और सेमी परमिएबल, ये सिलेक्टिव सब्सटेंस को अपने थ्रू पास होने देता है। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को तो ये इजीली पास होने देता है, लेकिन अमाइनो एसिड और शुगर मॉलिक्यूल पंपिंग के थ्रू आते हैं और आयंस और लार्ज मॉलिक्यूल को ये अपने थ्रू पास ही नहीं होने देता। रेगुलेट करता है ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन को। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन लिपिड बायलेयर्स के साथ टाइटली बाउंड होती है एनुलर लिपिड शेल की मदद से। जैसे कि लिपिड बायलेयर डिफाइन करता है सेल मेम्ब्रेन की बाउंड्रीज़ को, इसी तरह इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन उसी में हेल्प आउट करती है। ये किसी भी 2 लिपिड बायलेयर के दरमियान फ्यूजिंग करती है और ये किसी भी 2 डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर के दरमियान फ्यूजन प्रोवाइड करती है, जैसे कि एग और स्पर्म के दरमियान, जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं और किसी भी वायरस की सेल में एंट्री को। नेक्स्ट ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है।
किसी भी लिपिड बायलेयर का फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर उसकी वंडरवॉल फोर्सेस से मदद से हम कर सकते हैं। जिस लिपिड बायलेयर की लार्ज टेल होगी उसके दरमियान लॉन्ग इंटरेक्शन होगी और लॉन्ग इंटरेक्शन होगी तो उसके दरमियान लेस मोबिलिटी होगी, और जिस लिपिड बायलेयर की शॉर्ट टेल होगी तो वो शॉर्टली इंटरेक्शन हो गए उनकी आपस में, तो उनकी ज़्यादा मोबिलिटी होगी और वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर शो करेंगे। ये किसी भी एक्वस कंपार्टमेंट और उसके सराउंडिंग के दरमियान बैरियर प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि इसकी हाइड्रोफोबिक टेल होती है जो कि वाटर रिपेलेंट होती है, तो ये इसमें हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट इज़ ये ट्रांसमिशन करता है किसी भी नर्व इम्पल्स को, जबकि जैसा कि नर्व इम्पल्स नर्व के एंड में पहुंच जाती है तो ये लिपिड बायलेयर को सिग्नल प्रोवाइड करता है किसी भी स्पेशल वेजिकल्स के लिए। उन वेजिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स होते हैं। जैसे ही लिपिड बायलेयर से उसकी फ्यूजन होती है वो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स नेक्स्ट नर्व को सेंड हो जाते हैं। इस तरह ये नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन करता है। ये इन्वॉल्व होता है एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस में भी, टेकिंग इन फूड और एक्सक्रीट अ सब्सटेंस में। ये लिपिड बायलेयर फोल्ड या इनफोल्ड होकर किसी भी सब्सटेंस को या तो सेल के अंदर टेक इन करती है या उसको एक्सक्रीट कर देती है। एंडोसाइटोसिस की एक टाइप फाइगोसाइटोसिस में लिपिड बायलेयर फोल्ड होकर किसी भी प्रे या फूड एटम को अपने अंदर कैप्चर करती है और उसी के अंदर डाइजेस्टेड करती है। दैट्स ऑल। ये देखो इस बटन को क्लिक कर रही हो ना, ये जो नीचे बना हुआ है इसको क्लिक करोगी ना, ये देखो नीचे आता है लंच स्लाइड वाला ऑप्शन आ रहा है। ये इसको तुम स्लाइड ओपन की, ये जो ऊपर कप सा निशान बना हुआ है इसको ओपन करो। Assalamualaikum. My ये name देखो is वीडियो चल पड़ी Samina है Tahir. इसकी। My topic is the significance of lipids in transport.